In the name of Allah, who's Rahman and Rahim. Assalamu alaikum, dear students of class 9, and very good morning to all of you. Dear students, I hope you are safe and sound. And you know, yesterday we finished the lessons exercise, lecture number 24, and today I am going to deliver the lecture on the poem The Miller of the Dee, and it's a lecture number 25 and poem 16. Dear students, first we have to understand the poem Miller of the Dee. So here the miller, it means a person who operate the mill. So what kind of mill it was? The mill of a flour, आटे वाली चक्की जो, of the Dee. Here the Dee was a river. So there was a mill beside the river. Okay, Dee is a river. Okay, so it means the miller of the Dee. Okay, मिल चलाने वाला जो रिवर डी के करीब जो बिसाइड थी वहाँ मिल वो चलाता था. So dear student, this is a poem and it is based upon the story between the miller and the king named King Hall. Okay, so what is difference between the life of the miller and the life of the king? You will know about the life of the king, because the king's life is very beautiful, okay, and should be devoid of the tensions and worries, because the king spend a pleasurable life. But on the other hand, a miller or any other person who face the difficulties and hardships of life. But you see that it is always said that a person, even a poor person who spend a happy life. How a poor person spend a happy life? Because a person who doesn't keep long wishes, doesn't keep big wishes to be a wealthy person. Whatever he is provided or given by Almighty Allah, he is thankful to him. Okay, वो शुक्रगुजार होता है अल्लाह ताला का. But on the other hand, a person who is wealthy, okay, so a wealthy person has a different confusions and different difficulties in life. Okay, so in the same way, in this poem, the story of the miller and king. So now I would like to tell you the life of the miller. So dear students, here miller who used to run a mill to feed himself and his children. वो मिल चलाता था और ख़ुद के लिए मतलब अपनी लाइफ गुजारता था और अपने जो चिल्ड्रन थे, बच्चे थे, उनके लिए भी वो कमाता था. So in his life, when he used to operate the mill, he used to be happy and joyful. मतलब वो खुश होता था, okay, with his life, and singing a song. वो during operating the mill वो सिंगिंग भी करता था. ओके, तो वो अपनी लाइफ में बहुत खुश था. ही वॉज हैप्पी इन हिज लाइफ. ओके, बट ऑन द अदर हैंड देयर वॉज अ किंग. ही वॉज अनहैप्पी. ही वॉज क्रॉस इन हिज लाइफ. ही हैज़ डिफरेंट डिस्ट्रक्शंस, डिफिकल्टीज, डायलेमा in his life. He one day what happened? He invite means hasad karna. He invite the miller that you are a simple person, you are a common person who operate the mill and you are happy. Then you are happy. आप एक मिल चलाते हो फिर भी आप कैसे खुश हो? So the king is asking the secret of the happiness from the miller. Okay, so in this poem we will understand the story
the conversation between the miller and king. Okay, let us start. This poem is written by the Scottish journalist, poet, and songwriter Charles Mackay. He was born in 1814. He is famous chiefly, here chiefly means mainly, खास तौर पे, for his song, some of which were very popular even in his lifetime. उनकी ज़िंदगी में उनके जो पोएम्स रहे थे वो पॉपुलर थे, फेमस हुए थे. ही डाइड इन 1889. वो वफात पा गए 1889 में. सो देर डुवेल अ मिलर हेल एंड बोल. वहाँ एक मिलर रहता था जो बहुत हेल्दी, हेल में क्या है, हेल्दी एंड बोल, स्ट्रांग था. बिसाइड द रिवर डी, एक रिवर डी के करीब. ही वर्कड एंड सिंग फ्रॉम मॉर्न टू नाइट. वो मतलब काम करता था, ड्यूरिंग काम वो सिंगिंग भी करता था. नो लर्क मोर ब्लिथ देन ही, उनसे ज़्यादा कोई भी खुश नहीं हो सकता है. ब्लिथ क्या है, हैप्पीनेस. ब्लिथ मीन्स हैप्पी. And this the burden of his song forever used to be I envy nobody, no not. Envy क्या होता है कि डियर स्टूडेंट्स के हसद करना किसी के ऊपर. I and nobody envies me. ओके, क्योंकि उनकी जो वेट एज था, उनमें जो पावर था सॉन्ग में, तो वो उनको मतलब इट मेक हिम हैप्पी. और वो ना किसी पे हसद करता था और ना कोई उन पे हसद करता था. ओके, यू आर रॉन्ग माई फ्रेंड सेड ओल्ड किंग हॉल. ये कन्वर्सेशन हो रही है किसके साथ, किंग के साथ. कौन करता है, मिलर. देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन द मिलर एंड किंग. यू आर रॉन्ग माई फ्रेंड सेड द ओल्ड किंग हॉल, यू आर रॉन्ग एज रॉन्ग कैन बी. किंग कह रहा है कि मिलर को आप गलत हो, आप मीन्स जो और लोग हैं उनसे भी ज़्यादा आप गलत हो सकते हो. फार कुड में फार उसलिए कुड माई हार्ट बी लाइट एज थाइन. थाइन क्या है, मतलब यूअर. ये ओल्ड इंग्लिश है डियर स्टूडेंट के, थाइन पढ़ेंगे लेकिन इट्स यूअर, एज यूअर. कुड माई हार्ट बी लाइट एज यूअर. मकसद क्या है कि लाइट का इधर क्या मकसद है, ब्राइट, हैप्पी. आपकी जो हार्ट है, आप जो पुरसुकून है, इस तरीके से मैं भी हो सकता हूँ. आई एम ग्लेडली चेंज विथ यू. ओके, ग्लेडली मीन्स हैप्पीली. मैं चाहता हूँ कि आप की तरह मैं भी चेंज हो जाऊँ. ओके, एंड टेल मी नाउ व्हाट मेक यू सिंग. ये मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको मजबूर करती है सिंगिंग करने के लिए. विथ वॉइस सो लाउड एंड फ्री. आपके जो वॉइस है, आपका जो आवाज़ है वो मिल ले, वो खूबसूरत है, वो प्यारा है. वाइल आई एम सैड दो आई एम द किंग. मैं बादशाह होते हुए भी मैं उदास हूँ. बिसाइड द रिवर डी, जो रिवर के करीब. द मिलर स्माइल एंड डोफिड हिज कैप. मिलर ने ये सुन के स्माइल की और अपनी जो कैप थी, कैप होती है ना, कैप मतलब वो उतार दी. डोफिड क्या है, मीन्स उतारना, टू पुट ऑफ करना. आई अर्न माई ब्रेड कोड ही. मैं अपनी जो रोज़ी कमाता हूँ. आई लव माई वाइफ, आई लव माई फ्रेंड. मैं अपनी बीवी से प्यार करता हूँ, मैं अपने दोस्तों से भी प्यार करता हूँ. आई लव माई चिल्ड्रन 3. उनके जो 3 बेटे चिल्ड्रन हैं, बच्चे, उनसे भी वो प्यार करता है. आई ओ नो पेनी आई कैन नॉट पे. मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और मैं पे भी नहीं कर सकता. आई थैंक द रिवर डी. मैं इस रिवर का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे मतलब खिलाती है. डेड टर्न द मिल, डेड ग्रीन द कॉर्न. जो मिल चलती है और आटा आता है हमारे घर पे. टू फीड माई बेबीज़ एंड मी. जो मुझे और मेरे बच्चों को वो खिलाती है. गुड फ्रेंड सेड हॉल एंड साइड द वाइल. किंग अब कह रहा है कि बेहतरीन दोस्त, फेयरवेल एंड हैप्पी बी. फेयरवेल क्या है कि जब आप किसी को फेयरवेल करते हैं, उनको मतलब इख्तिताम देते हैं, उनको मतलब आप जो सपोज़ करें कि कहीं भेजते हैं या वो जाता है, उनको अब रुखसती करते हैं, फेयरवेल होती है. अब फेयरवेल पार्टी भी होती है, आपको मतलब पता होगा. एंड हैप्पी बी, बट से नो मेर इफ़ यू वुड से ट्रू. अगर आप सच बोल रहे हो तो उनके ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलना. डेड नो मैन इनवाई यू. मुझे पता है कि कोई भी आप
के ऊपर असर नहीं करता, आपसे असर नहीं करता। यू मेली केप क्या है कि जो केप थी वहाँ मिल में, जो उन केप पे आटा जो होता है ना कि जो मशीन होती है और वहाँ वो आटा लग जाता है उसे, इज़ वर्थ माई क्राउन, आपकी जो मेली केफ है और वो इक्वल है मेरे क्राउन, मेरे ताज, मेरे तख्त की। यूर मिल में आई किंगडम्स फी, ओके, आपकी जो मिल है मेरी बादशाहत की फ़ी है, मतलब बादशाहत की इतनी मतलब वो प्रॉपर्टी है। सच मैन एज यू आर इंग्लैंड बूस्ट, आप जैसे लोगों को जो इंग्लैंड या जो इंग्लिश पीपल का नॉज है, प्राउड है, ओके, ओ मिलर ऑफ द डी, ओ मिलर ऑफ द डी। सो डियर स्टूडेंट, आपने और लिसन भी कर लिया और देखा कि मिलर कितना खुश है, अपनी जो कुछ भी उनके पास है उनसे वो ज़्यादा है, मेहनत कर रहा है और अपने वाइफ से, अपने फ्रेंड से, अपने चिल्ड्रेन से वो मोटिवेटेड है, कंटेंटेड है, हैप्पी है, खुश है। लेकिन ऑन द अदर एंड दूसरी साइड पे देखेंगे जो एक किंग है, किंग होते हुए भी वो परेशान है, मजबूर है और वो चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में वो पुरसुकून ज़िंदगी गुजारूँ, ओके। तो ये था डियर स्टूडेंट्स द स्टोरी अबाउट द किंग एंड द मिलर, एंड व्हाट इज़ द मोरल एंड व्हाट इज़ द स्टोरी। मोरल ऑफ द स्टोरी इज दैट व्हाट एवर यू हैव, व्हाट थिंग्स यू हैव, बी हैप्पी। ऐसा होता है ना कि जो चीज़ भी आपके पास है वो उनसे आप खुश हों, और यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड, आप शुक्रगुजार हों अल्लाह ताला के, व्हाट थिंग्स ही हैज़ प्रोवाइडेड टू यू, जो चीज़ अल्लाह ताला ने आपको दी है उनमें से आप शुक्रगुजार रहें, खुश रहें और अपनी मेहनत करें, ओके। तो ये था एक मोरल ऑफ द पोएम, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, हेयर डुएल मैंने अभी बताया आपको, लिव, हेल एंड बोल मीन्स हेल्दी एंड फ्री फ्रॉम केयर, बोल, ब्लिथ मीन्स हैप्पी, फ्री फ्रॉम केयर्स वरीज, डॉफिड मीन्स उतारना, रिमूव करना, कोड मीन्स सेड, मेली मीन्स कवर्ड विथ फ्लोर, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, so now what you have to do, you have to do the answer to these questions that we are asked in the exercise, who are the speaker in the poem। आपको ये 6 के आपको क्वेश्चन देने, आंसर देने, ओके। ये आपके लिए होमवर्क है, और सेकंड आपके लिए ये भी होमवर्क है, तो राइट a paragraph on how a person can be content, how a person can be live happy। माना कोई भी आदमी अपनी ज़िंदगी कैसे जो वो हैप्पी वाली, ओके, गुजार सकता है। योर होमवर्क इज राइट अ पैराग्राफ ऑन अ हैप्पी लाइफ, ओके, पैराग्राफ ऑन हैप्पी लाइफ, ये भी आपके लिए होमवर्क है। और आपके लिए दूसरा जो होमवर्क है कि वो इनके आंसर, गिव आंसर टू दीज क्वेश्चंस, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।